Okay, once again, welcome back to the online class. I hope you all are fine. We were discussing the fourth chapter of Good Flying Course, the rat trap. The rat trap. This chapter has been narrated by Salma Lazarov. Now, let's begin from where we left yesterday. Yes, we were explaining page number 35. Page number 35, second paragraph. Okay, second paragraph was being explained yesterday. We explained up to the part of this chapter when Paddler, the red trap seller, finds himself in the jungle. He was energyless. He has no energy. He has no courage. He has no enthusiasm. It seems to him that the end of his life has come because he had been wandering on the same path in the same direction constantly since he went in the jungle. But he could not escape from there. वो जंगल से escape नहीं कर पा रहा था. Finally, he was busy with his own thought that came to his mind at the time when he started his journey from that day. I mean, early in the morning when he started his journey, he was thinking that the whole world is just like rat trap, and all the men, all the human beings who exist in the world are just like rats. Okay, so everybody has to stuck themselves someday only in order to get bats. लालच के चलते सारे लोगों को एक न एक दिन इस दुनिया में फंस ही जाना है. Some of them have stuck themselves. Some of them are, a few of them are still wandering around the bait. और उनमें से कुछ लोग अभी भी उस बेट के चक्कर में घूम रहे हैं. What happened? The accident took place in his life when he left the cottage of old man. जब वो old man के cottage से बाहर आता है, he stole the money, that is 30 kroner, and he did not want to choose the public highway because he'll be arrested. वो arrest कर लिया. So he decided to go through woods. वो जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश करता है. When he went into the woods, he was unable to escape from there, and the darkness was descending. धीरे धीरे अंधेरा हो गया. Finally, he was energyless and exhausted. वो पूरी तरह थक गया, and he fell on the ground. और वो पृथ्वी धरती पर गिर जाता है. ठीक है. Meanwhile, he heard the sound of thumping. उसने thumping या टक टक की आवाज सुनी. It seems to him that definitely men will be there. आदमी ही होंगे because the sound was thumping. The sound of thumping was coming from an iron mill. एक लोहे की मिल से वो आवाज आ रही थी. And he mustered up. उसने पूरी तरह से अपने करेज को, अपने हिम्मत को इकट्ठा किया. ठीक है, जुटाना कहते हैं muster up का मतलब. And finally he staggered himself towards the मिल, और उसने अपने आप को मिल के तरफ घसीटते हुए ले जाता है. Now what happens with him when he went there? जब वो वहां पे जाता है तो आगे क्या होता है? What happens with him? Let's go to the paragraph. The Ramsor and works, which are now closed down, were not so long ago, and a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long times of heavily loaded barges and scows slide down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mill were black from the coal dust which shifted down from the big charcoal grates. Okay, now the Ramsor Ironworks. The mill was known as Ramsor Ironworks. As you know,
that the old man who had been once a crafter, he worked in Ramsor iron mill. वो Ramsor iron mill में ही crafter हुआ करता था, ठीक है। उसी iron mill की बात करी जा रही है that it has been recently closed down. ये अभी जल्दी ही हाल ही में बंद हुई है, which were now closed down, were not so long ago. बहुत पहले की बात नहीं है, भी जल्दी ही ये चीजें बंद हुई है। ये जो iron mill है, recently it has been closed down. Now a large plant, एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, ठीक है। प्लांट का मतलब ये पौधा नहीं है, ये प्लांट का मतलब इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। नाउ which smelter rolling mill, okay, which has a smelter rolling mill and force भट्टी कह सकते हैं, चिमनी कह सकते हैं। एंड इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स, गर्मी के समय में ड्यूरिंग द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्सेस, बहुत ही हैवीली लोडेड का मतलब ओवरलोडेड, ठीक है, बार्सेस, लोहे की जो बार्सेस होती हैं, जो रॉड्स होती हैं, उनसे लदा हुआ लंबा लंबा ट्रक वहां पे देखा जा सकता है। एंड स्काउट्स स्लाइड डाउन द कैनल विथ लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि लेड करता है एक लार्ज इनलैंड लेक, एक लंबी सी स्ट्रीम की तरह लेक जैसी, यू कैन से मेल्टिंग मटेरियल्स ऑफ आयरन, लोहे की मेल्टिंग मटेरियल्स या फिर पिघले हुए आयरन की जो लिक्विड होती है, उस तरह से, जैसे आपने देखा होगा गन्ने की मिल देखा होगा, शुगर केन की मिल देखा होगा, तो मिल के आसपास लेक जैसा बना होता है, जो कचरा होता है, जो रबिश होता है, वो उस लेक में जाता है। सेकंड थिंग, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और ठंडी के समय में ऑल द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, काले हुआ करते हैं बिकॉज ऑफ कोयले के कारण, ठीक है। नाउ एंड डस्ट सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैक्स, और जो कोल होता है, ठीक है, उसकी जो डस्ट होती है वो पूरी तरह से कोल पर डस्ट फैली होती है, बिखरी पड़ी होती है। इट इज रैप्ड अप, देयर इज अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन द कोल इन विंटर साइड, ठीक है। ये क्या है, ये सिनेरियो बता रहा है, ये दृश्य बता रहा है कि वो जो आयरन मिल है उसके आसपास का माहौल कैसा है, दृश्य कैसा है। नाउ next paragraph in talk, during one of the long dark evening, एक शाम की बात, just before Christmas, Christmas day means it was 24th of December, 25th is known as Christmas day, 24th of December is one day before Christmas. Up the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. सुबह तो पैडलर किसी तरह से पास करता है, दोपहर हुआ, रात हुई, रात को जंगल से जब आयरन मिल के पास जाता है तो आयरन मिल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आयरन मिल है क्या, कैसा काम होता है और वहाँ कौन लोग काम करते हैं। अब बताता है that one evening of long, बहुत है लंबी, long dark evening means विंटर सीजन में जो ठंडी होती है ना, इससे जो शाम का वक्त होता है, शाम का जो टाइम होता है, इट इज लॉन्गर, ये लंबा होता है। इट सीम्स दैट इट डज नॉट पास इजीली, ये बहुत जल्दी पास नहीं होता है, ऐसा लगता है। जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के एक दिन पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मास्टर स्मिथ जो वहाँ का मास्टर लुहार था, एंड हिज हेल्पर उसका अप्रेंटिस वहाँ पे बैठे हुए थे। इन द डार्क फोर्स, उस बिल में, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन रॉ मटेरियल, पिग आयरन का मतलब कच्चा माल, ठीक है। दे वर वेटिंग फॉर पिग आयरन देयर व्हिच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि रखा गया था, व्हिच हैज बीन पुट, जिसको रखा गया था, इन द फायर, आग में रखा गया था, ठीक है। वो उस आयरन की इंतजार में बैठे थे, जो कच्चा माल जो फायर में रखा हुआ था, उस माल का इंतजार कर रहे थे। व्हेन इट इज टू बी रेडी, ये कब तैयार होगा। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टायर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, और उनमें से कोई एक फ्रीक्वेंटली, बार बार, he goes and checked it out, वो जाता है और चेक करता है। he has a long rod, एक लंबा सा बार होता है, रॉड होता है, जिससे वो चेक करता है कि हाँ ये पूरी तरह से पिघल गया है या नहीं, ठीक है।
अब रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर कुछ ही समय बाद वो रिटर्न हो जाता है। मतलब एक प्रोसेस है उस मिल में काम करने का कि सबसे पहले कच्चे माल को जो है मिल में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं, फिर भट्टी में देखते हैं बार बार जा करके बार की मदद से कि हाँ जो आयरन मिल है वो पूरी तरह से काम कर रही है कि नहीं, या फिर जो पिग आयरन हमने डाला था, जो कच्चा माल डाला था, वो कच्चा माल पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है कि नहीं। बार बार मींस इंस्पेक्शन वाज गोइंग ऑन, बार बार चेक कर रहे थे लोग वन बाय वन करके। नाउ ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, ड्रिपिंग का मतलब वेट, भीगा हुआ, पर्सपिरेशन का मतलब स्वेटिंग, ठीक है, पसीने से पूरी तरह भीगे हुए लोग थे। बिकॉज वर्किंग अराउंड द फर्नेस इज टू इनवाइट लॉट्स ऑफ हीट। अगर आप फर्नेस या भट्टी के चारों तरफ काम करते हैं, आसपास काम करते हैं, तो बिल्कुल आपको गर्मी होनी ही होनी है। तो पसीने से वो बिल्कुल भीगे हुए थे। तो भले ही एज वाज द कस्टम के मुताबिक, जो रीति रिवाज होता है उसके मुताबिक, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. The apprentice who were working around the furnace, he was working only a long shirt, एक लंबा सा शर्ट and wooden shoes, ठीक है, और लकड़ी का बना हुआ चप्पल कह सकते हैं, जूता कह सकते हैं, ठीक है। तो वो लकड़ी का जूता इसलिए पहने थे टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फीट फ्रॉम हीट, हीट से अपने पैरों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये तो आयरन मिल का डिस्क्रिप्शन हो गया। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द वॉल्स, ऑल द टाइम व्हेन द वर्क ऑफ आयरन वाज गोइंग ऑन, जब लोहे का काम चल रहा था वहां पे, सो ऑल द टाइम अ साउंड कुड बी हर्ड, वहां पे आवाज सुना जा सकता था, हर टाइम कोई ना कोई आवाज डेफिनेटली आएगी आएगी। जैसे अभी स्कूल में चल रहा है, काम चल रहा है, the work is going on in the school, so we could heard many sounds most of the time, हर समय लगभग कोई ना कोई साउंड आता है। It irritates us, however we ignore, we refuse the sound and we are busy. Now to be heard, the big bellows groaned and the burning coal cracked. जो burning coal, I mean जो जलता हुआ कोयला होता है वो क्रैक होता है, उसकी साउंड, उसका आवाज। और जो बिग बेलोज, जो रॉ मटेरियल होता है, जो पिग आयरन होता है, उसका ग्रोनिंग, उसके उबलने की, बॉइलिंग की आवाज, उसके गदगद करने की आवाज, ठीक है। नाउ द फायर बॉय शॉव आउट चारकोल इनटू द maw of furnace. द बॉय, ओके, शॉवेल डालना, द कोल कोयला इनटू द maw of furnace, फर्नेस के मुंह में। maw का सेंस क्या है? maw का सेंस क्या है? इस तरह का आपने कोयले वाली फ्लेम देखा होगा आपने, जहां से ऐसे धुआं निकलता है, इस तरह का एक शेप होता है जिसको maw बोलते हैं, उसी में कोयला डालना होता है, ठीक है। The boy was shoveling the charcoal into the maw of furnace and with a great deal of clatter, और बहुत सारा आवाज होता है, clattering sound होता है उसमें, ठीक है, जब वो कोयला डालता है। आउटसाइड, बाहर की तरफ, roared the waterfall, they could hear the roaring sound of waterfall, पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, and a sharp north wind, और बहुत ही तेजी से हवाओं के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। Wiped the rain against the brick tile roof, and when the rain means varsha, against the tile roof, brick tile roof, and all the walls were already plastered and tiled, so the drops of rain were falling on the wall, and it was also blowing sounds, और इससे भी आवाज निकल रही थी, ठीक है। तो अब ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन रहा उस मिल का, उसके आसपास का क्या माहौल है। लेट्स नो वंस अगेन इन हिंदी कि जो मिल है वो लोहे की मिल है, रैंजो आयरन वर्क, ठीक है। गर्मी के समय में वहाँ क्या होता है, लंबी लंबी रॉड से लगी हुई कतारें वहाँ पे होती हैं। ठंडी के टाइम क्या होता है कि कोल की वजह से जो रास्ते होते हैं वो पूरी तरह काले हो जाते हैं, और ये जो वर्कर्स हैं, एक आयरन स्मिथ मींस मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, दो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं। दे आर वर्किंग विद बिग आयरन, वो कच्चे माल के साथ काम कर रहे हैं। दे आर ड्रिपिंग, दे आर शॉवेलिंग the big iron into the furnace, वो भट्टी में उसको डालते हैं, they melt it, okay, they wet it, they inspect it, उसको बार-बार चेक करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आवाजें कैसी होती हैं, बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती हैं, लोहे की आवाज, वाटरफॉल की आवाज, बारिश के गिरने की आवाज, जो टाइल्ड रूफ या टाइल्ड दीवारों पर जो आवाज होती है उसको, मतलब ये सारा साउंड वहाँ पे सुना जा सकता है। नाउ
It was probably on account of all these wives that blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the house. Now, due to lots of sounds and noise, बहुत सारे आवाज या शोर की वजह से the blacksmith did not notice a man who had opened the gate. जैसा कि आपको पता है कि पैडलर उस आयन मिल के पास जा चुका है. अब उसके पहले आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया, आयन मिल का, वहां बहुत सारी आवाज हो रही थी, बहुत सारा शोरगुल हो रहा था. तो इस शोरगुल के कारण जो मास्टर स्मिथ होता है वो इस चीज को नोटिस नहीं करता है कि कोई आदमी आयन मिल का गेट खोलकर एंट्री ले रहा है, अंदर आ रहा है. वो आदमी कौन था? पैडलर था, वो जो रेड रैप सेलर था. ठीक है, मींस ही एंटर्ड इनटू द गेट विदाउट बीइंग नोटिस्ड. ठीक है, मतलब उसको नोटिस नहीं किया गया और वो गेट के अंदर चला गया. अब until he stood close up to the furnace, जब तक वो फर्नेस भट्टी के बहुत ही करीब नहीं आ जाता है तब तक उसको कोई ध्यान नहीं देता है. बट फाइनली ही वॉज वेट, वो भीगा हुआ था. ही वॉज ट्रैम्बलिंग, वो कांप रहा था. ही वॉज शिवरिंग, कंपन सा हो रहा था उसके शरीर में. सो ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ वेरी क्लोज टू द फर्नेस टू गेट सम हीट. कुछ गर्मी के, कुछ टेम्परेचर को पाने के लिए, आग के पास जाने के लिए वो अपने आप को फर्नेस की तरफ खींच रहा था. और जब the moment he went very close to the furnace, the iron master had paid attention. उस टाइम तक वो आयरन मास्टर उसको देख चुका था. अब आगे क्या होता है? Surely it was nothing. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the scooty pens and to come in the warm themselves in front of them. Surely and definitely it was nothing unusual. ये कोई unusual नहीं था, मीन्स कुछ अजीब नहीं था, कुछ स्ट्रेंज नहीं था, कुछ ओड नहीं था. ठीक है, because he was a vagabond. vagabond का सेंस होता है आवारा, घुमक्कड़. ठीक है, एक घुमक्कड़ आदमी के लिए कुछ अजीब सा नहीं था कि वो इस तरह से अनजान जगह पे जाए और विदाउट परमिशन किसी के घर में घुसे, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो एक चोर भी है. ठीक है, एक घुमक्कड़ आदमी के लिए मैटर नहीं करता कि वो किसी की भट्टी में या किसी के घर में बिना परमिशन लिए एंटर लेता है. अब विदाउट एनी बेटर शेल्टर, और वो जो शेल्टर है, जो रहने का स्थान उस मिल में है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही दिन काटता है, ऐसे ही समय बिताता है. ठीक है, तो इस तरह की जगह पे वो ऑलरेडी रहता हुआ आया है. बिकॉज ही हैज नो शेल्टर ऑफ हिज ओन, नो होम हिज ओन. उसका खुद का अपना कोई घर नहीं है, ना ही कोई रेजिडेंशियल प्लेस है उसका, और ना ही खाने का अच्छा बंदोबस्त है उसके पास. अब आगे क्या होता है? Glow of light. He was attracted by the glow of light. You can say shining light attracted the sight of paddler. Paddler को जो shining of light होती है वो अट्रैक्ट करती है, तभी उसके पास वो जाता है, क्योंकि वो ठंडक महसूस करता है. वो आग के पास जाना चाहता है जिससे अपने आप को थोड़ा सा वो वार्म अप कर सके. अब लाइट स्कूटी पेन्स, जो कि वो विंडो के स्कूटी पेन्स से, स्कूटी पेन्स विच इज ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखाई दे, उस पेन से वो देख सकता था. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, इट शुड बी हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर. ठीक है, बिफोर द फायर, फायर के पास आता और अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करता, गर्म करता, इसलिए वो यहाँ आया हुआ था. ठीक है, फाइनली he was attracted by the shine of light and he came into the mill in order to warm himself. ठीक है, now the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. The blacksmith, वो जो iron master था, जो blacksmith था, he glanced, उसने देखा at the intruder. Intruder means the person who breaks into someone's house. बिना परमिशन के किसी के घर में जबरदस्ती घुसने वाले इंसान को इंट्रूडर कहते हैं.
He looked the way people of his time usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. How did he look like? Who? Paddler, rat trap seller. वो दिखता कैसा था? बताया गया है that he was looking with long beard, लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी, rags पहने हुए था, and with a bunch of rat traps, and he had bunch of rat traps, large number of rat traps that were hanging or dangling on his chest. उसके सीने पर वो लटक रहा था, मतलब गले में उसने rat traps लटकाया हुआ था. It was dangling there, and he was wearing rag worn out clothes, very fat clothes that usually poor wears. जैसा कि गरीब आदमी पहनता है वैसे ही वो पहना हुआ था. He asked permission to stay. The master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. The blacksmith, the man who was the master smith in the mill, you can say, nodded his head knowingly to give permission. Yes, you can go there without honoring with a single word. He did not say any word in the honor of that man, because such men are never welcomed. ऐसे लोग कभी वेलकम नहीं दिए जाते इनको. ऐसे लोग होते ही ऐसे हैं कि उनका जो रूप रंग होता है, जेस्चर, पोस्चर, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन देता है. सो दैट पीपल डू नॉट ऑनर, सॉरी, गिव देम ऑनर और वेलकम देम. ऐसे लोगों को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, स्वागत नहीं करते उनका. सो मास्टर स्मिथ said nothing. उसने कुछ नहीं कहा. Only he nodded his head that you can stay. हाँ, ठहर जाओ, ठीक है, रुक जाओ, कहीं जाओ कोने में, just take your shelter in the corner, anywhere, somewhere, कहीं जाओ, ठीक है. अब आगे क्या होता है we'll know in the next episode. Okay, till then, stay home and stay safe.